Thank you very much for inviting me. First of all, I must thank the Pfizer company to take the initiative to start these webinars in this COVID era. We had a great thirst for these webinars and the trainees and the doctors. So it's a great help for all of the doctors to listen to these interesting topics and get some knowledge. I wish we could also have CME points of these webinars so that the doctors who are listening and the doctor who are giving lectures should get some benefit out of it for their CVs and for their registration. So the topic today is pelvic inflammatory disease, it's screening, prevention, and management. And we will discuss a lot of things about this common gynecological problem. First of all, overview, how common it is in our female population, risk factors associated with PID, how do we screen it, how do we treat it, what are the guidelines, what is the role of doxycycline, and how can it be prevented? Because as you know, prevention is better than cure. Because as we go ahead in the lecture, we will know that pelvic inflammatory disease may go unrecognized and have grave consequences such as infertility and ectopic pregnancy. So what is pelvic inflammatory disease? It's an inflammation of the upper genital tract. And this inflammation usually caused from the lower genital tract, and the uterus, ovary, and the fallopian tubes and cervix is affected. It is typically an ascending infection from the lower genital tract, and majority of pelvic inflammatory disease are sexually transmitted, though a small people may have it due to bloodborne. Diagnosis of PID is primarily, it's typically an ascending infection, and its diagnosis is clinical, and you should suspect it in a patient who has got low abdominal pain or genital tenderness. We must not forget that the commonest organism which causes pelvic inflammatory disease is Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis. So it's important to diagnose, and even if the diagnostic facilities are not available, you should treat them with antibiotics which act on these organisms. So short-term complications of pelvic inflammatory disease may be pelvic abscess or tubo-ovarian abscess. But it's the long-term complications which we are worried about, and they can cause infertility, ectopic pregnancy, and chronic pelvic pain. If we treat pelvic inflammatory disease in time, these complications would not occur. Right. So what is the prevalence? This is the disease of young and very young girls in their reproductive life who are sexually active. It's one of the most common gynecological disorders of women and leads to complications such as infertility, ectopic pregnancy, and chronic pelvic pain if not treated early. So 1% in 15 to 25 years of age group in worldwide, and 24 to 32% in India, around 8% is estimated to be affected in Pakistan. In developed countries, the incidence, just remember, it's about 1 to 1.5%, with 20 per 1,000 women being in the age group of 20 to 24. तो ये एक रिसर्च में आपको पता चल रहा है कि देखिए एज इट्स 20 to 25, 26 to 30 में तकरीबन 70% पेशेंट्स जो हैं इस एज ग्रुप में इन्फेक्टेड होते हैं. तो इस एज ग्रुप में हमें कंसंट्रेट करना है ताकि इन पेशेंट्स को PID ना हो, इनका
हमने ट्रीट करना है, डायग्नोज करना है, प्रिवेंट करना है। 85% ऑफ जो पेशेंट्स हैं इन सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में ये STIs लीडिंग टू PID होता है, और रिमेनिंग जो 15% हैं फॉलोइंग प्रोसीजर्स लाइक our famous DNC, which thank God not many gynecologists are doing now unnecessarily, and insertion of IUDs, hysterosalpingography. So any procedure done on the female genital tract should be entirely free of infection, and you should take care of sterilization. कौन सी पेशेंट्स हैं, कौन सी खवातीन हैं जिनमें ये PID हो सकता है? यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया है, बहुत यंग लड़के, उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको देखना है, और अगर इन बच्चियों का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का एक्सपोजर हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज में इट्स अ लिबरल सोसाइटी, वहाँ पे गम क्लिनिक्स होते हैं। गम क्लिनिक्स का मतलब जेनिटल यूरिनरी मेडिसिन क्लिनिक्स, वो वहाँ जाके अपना इलाज कराती है, अपना प्रिकॉशंस पूछती है। इवन दो यहाँ भी सोसाइटी लिबरल हो सकती है, हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दोज इंटरनेट्स एंड सो मेन एंड women should be counseled about this, about behavioral changes. Centrally जो इसको प्रिवेंट करेगा वो behavioral changes हैं। सेफ सेक्स होना चाहिए। तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? मल्टीपल पार्टनर्स। So this should be taught to men as well as females. We are concerned with females. So multiple partners, age at first intercourse, अगर पहले कोई हिस्ट्री हुई है इसकी PID की, अगर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाया है या ट्यूबल लाइगेशन। तो आप देखें इस नीचे, आप ये जो पब्लिश हुआ है इसमें देखें, अगर एक दफा क्लेमिडिया हुआ है उसको ज्यादा चांस है, क्लेमिडिया या गोनोरिया को लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में अगर हुआ है तो उनका ज्यादा चांस है कि उनको PID यानी अपर जेनिटल ट्रैक्ट में इंफेक्शन होके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर एक औरत स्मोक कर रही है तो उसके ज्यादा चांसेस हैं। इसी तरह अगर लाइफ पार्टनर ज्यादा हैं, 2 से 4, तो उनका ज्यादा इंसिडेंस है एज कंपेयर टू वन लाइफ पार्टनर। एज ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए टीनेज मैरिजेस भी लॉ में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये जो मीनार्क है उसके तकरीबन 2 से 3 साल बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, जिससे पहले PID का चांस ज्यादा होता है। ना कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ये PID कॉज करते हैं? आप देखिए, बैक्टीरिया गोनोरिया, क्लेमिडिया, ट्रैकोमैटिस सबसे ज्यादा 30%। इसीलिए जब आप, और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ज्यादातर आप जो स्वाब करती हैं उसमें नहीं आते, उसमें इनकी पॉजिटिविटी अक्सर नहीं आती। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो पुअर होते हैं, जो दूर से आते हैं, उनका आप स्वाब कर ही नहीं सकते क्योंकि दे कांट वेट फॉर 3 डेज। तो आप ट्रीटमेंट ही ऐसे दें जिसमें गोनोरिया और क्लेमिडिया के अगेंस्ट इफेक्टिव हो। दूसरा है माइकोप्लाज्मा। देन सेकेंडरी ऑर्गेनिजम्स भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, और वो क्या है? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स आर non-hemolytic streptococcus, group B streptococcus and staphylococcus, और जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरियोइड्स, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस एंड पेप्टोकोकस। और यहाँ मैं ये भी कहती चलूं कि अगर किसी को बैक्टीरियल वेजिनोसिस है उसको भी जल्दी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरियल वेजिनोसिस is a good culture medium for chlamydia and gonorrhea. Now pathology is very important. Pathology में क्या होता है? आप सर्विक्स के थ्रू इंफेक्शन जाता है यूट्रस में और ट्यूब्स में। ट्यूब्स आर वेरी सेंसिटिव, यूजुअली बायलैटरली ट्यूब्स इन्फेक्ट होती हैं, और एंडोसेल्विक्स में शुरू होता है ये प्रोसेस। एंडोसेल्विक्स में क्या होता है? सीलिया, छोटे छोटे बालों की तरह के सीलिया होते हैं, जो कि ओवम के इंट्रैपमेंट और एम्ब्रियो का ट्यूब से
यूट्रस के सफर में वो हेल्प करती हैं, और ये माइक्रोविलाई भी। तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो लेटर ऑन इनफर्टिलिटी हो है। तो ये जो एक्सीडेंट है म्यूकोजल फोल्ड बनता है इन्फ्लेमेटरी एक्सीडेंट, तो म्यूकोजा के एक दूसरे से जोड़ देता है, और जो एब्डोमिनल ऑस्टियम है फिलोपियन ट्यूब का, वो अंदर की तरफ एजिटेटिस होके अंदर की तरफ खींच आता है और बंद हो जाता है, और इसी इंफेक्शन की वजह से एडहेजन्स भी बनती हैं। जहाँ इंफेक्शन हो वहाँ फाइब्रोसिस होती है। चूंकि ट्यूब में कंजेशन है, इन्फ्लेमेशन है, तो यूट्रस का एंड भी क्लोज हो जाता है, तो अंदर एक्सीडेट बन जाता है बिकॉज ऑफ द इंफेक्शन। अगर ऑर्गेनिज्म बहुत विरुलेंस है तो बायोसेल्पिंग्स बनता है। अगर एक्सीडेट वाटरी है तो ये हाइड्रोसेल्पिंग्स बनता है। आप हाइड्रोसेल्पिंग्स हिस्टोसेल्पिंगोग्राम पे देख सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब की जो फिम्ब्रियल एंड है वो बहुत थिन हो जाता है और इट इज सोलन। और बायोसेल्पिंग्स अगर इंफेक्शन है तो हिस्टो तो कभी नहीं करनी, लेकिन बायोसेल्पिंग्स आप अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज कर सकते हैं या लेप्रोस्कोपी। माइक्रो एनवायरमेंट एंड फिर ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो जहाँ इंफेक्शन होगी वहाँ और ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, और ऑर्गेनिजम्स की वजह से पेनिट्रेशन होगी और एडहेजन्स बनेगी। इसीलिए acute infection can lead to adhesions, and it will lead to chronic PID, and it will lead to a frozen pelvis. So sometimes what happens कि ये जो exudate है, जो inflammatory fluid है, ये abdominal ostium tube से लेके पेरिटोनियम में चला जाता है। पेरिटोनियम में जब गया तो वो पेरिटोनिटिस, which is very dangerous, the patient can even die, pelvic abscess बना सकता है या ओवेरियन abscess बना सकता है। अब आपने PID को डायग्नोज कैसे करना है? PID को डायग्नोज करना जरा मुश्किल ही काम है। वो इसलिए कि इट कैन बी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। अब जरूरी नहीं है कि पेशेंट्स के सिम्टम्स हों, सिर्फ वो एज अ डिस्चार्ज आ सकती है, या वो आ सकती है कि उसको डिस्चार्ज नहीं है, उसको वेजाइनल यूट्रस को आप पल्पेट करते हैं तो कुछ पेन है, तो या सिम्टम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एनी पेशेंट हु इज सस्पेक्टेड, अगर पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन है और उसको सर्विक्स आपने टच की तो उसको पेन हो रहा है, तो उसको आप जरूर करें गोनोरिया, क्लैमिडिया, माइकोप्लाज्मा के लिए, क्योंकि यही 3 नोटोरियस ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लेटर ऑन इनफर्टिलिटी करते हैं। माइकोप्लाज्मा अक्सर टेस्ट नहीं होता, लेकिन नहीं भी होता तो अगर आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल एलिवेटेड ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन का ज्यादा होना, या वाइट ब्लड काउंट अगर ज्यादा है, तो ये आपकी डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है। ये चीजें स्पेसिफिक नहीं है उसके लिए PID के लिए, लेकिन that can support if this patient with pelvic pain has got these things, so you have to treat them voraciously. अगर आपने विजाइनल डिस्चार्ज को ग्राम स्टेन से देखा है और उसमें आपको पसेस नजर नहीं आए, तो इसका मतलब है PID का होना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन अगर पसेस हैं तो इट्स अ पुअर प्रेडिक्टिव वैल्यू। हो जरूरी नहीं है कि उसको PID हो, थोड़े बहुत पसेस वैसे भी विजाइनल फ्लूइड में हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड भी मुश्किल से PID को डायग्नोज करता है, MRI भी मुश्किल से डायग्नोज करता है, और आप अल्ट्रासाउंड में या MRI में क्या देखेंगे? थिकन ट्यूब्स देख सकते हैं, फ्लूइड इन द पाउच ऑफ डगलस विच मे बी वाटरी और विच मे बी पस, और या आप देखें ट्यूब्स आर सोलन एंड इट मे बी हाइड्रोसेल्पिंग्स और इट मे बी बायोसेल्पिंग्स। लेकिन एक दूसरा डॉक्टर आप अगर करें
तो डॉपलर में इंक्रीज वास्कुलैरिटी होती है, लेकिन ये इंक्रीज वास्कुलैरिटी और चीजों में भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल एंडोमेट्रियोसिस। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है पीआईडी के। मेनली आपने एक पेशेंट को अगर लोअर एब्डोमिनल पेन है और उसको डिस्चार्ज है और उसको सस्पिशियस है कि इस औरत के कोई मल्टीपल पार्टनर्स हों, या आपने अगर उसका प्रॉपर सर्वाइकल स्वाब लिया जिसमें गोनोरिया या क्लैमिडिया आया है, तो यू सस्पेक्ट पीआईडी एंड यू शुड ट्रीट इट इमीडिएटली। Now, 2 organisms जो मैंने आपको बताए हैं, they are notorious for causing PID and inflammation in the tubes and tibial blockage are chlamydia and gonorrhea. इन दोनों के आप देखें डिस्चार्जेस डिफरेंट है। क्लेमिडिया में इतना ज्यादा डिस्चार्ज नहीं है, गोनोरिया का पुरुलेंट और पस लाइक कोपियस विजाइनल डिस्चार्ज है। अब ये जो आप इनके अगर हाई विजाइनल स्वाब लेंगे उसमें पता नहीं चलेगा। आपको सर्वाइकल स्वाब लेना है, आपको स्वाब लेना है यूरेथ्रा से। अब जो बास टेस्ट है उससे ये क्लेमिडिया या गोनोरिया का पता नहीं चलता। आपने स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं जिसमें नाक जिसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, उसमें आपको क्लेमिडिया या गोनोरिया का पता चलेगा। अब क्लेमिडिया की ये खसूसियत है, गोनोरिया ग्राम नेगेटिव कोकाई है, लेकिन क्लेमिडिया जो है, क्लेमिडिया है तो बैक्टीरियम, लेकिन ये बिहेव करता है एज अ वायरस क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। इसीलिए जब आपने स्वाब लेना है तो आपने प्रॉपर सर्विक्स से स्वाब लेना है, उसे ब्रश करके लेना है ताकि कुछ सेल्स आए ताकि आपको क्लेमिडिया की डायग्नोसिस हो सके। ये एक सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं फिट्ज्हugh-कर्टिस सिंड्रोम, और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स बनाता है? ये बनाता है गोनोरिया एंड क्लेमिडिया। अब फिट्ज्हugh-कर्टिस सिंड्रोम में पेरीहेपेटिक एडिशंस हो जाती हैं। आप ये देखें, आपको लिवर नजर आ रहा है, ये एरो जो है ये एडिशंस हैं, और पेशेंट अब पीआईडी की पेशेंट आपको प्रेजेंट हो सकती है एज पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। लिवर के एरिया में उसको पेन होगा। लेप्रोस्कोपी में अगर आप करें तो आपको ये फिट्ज्हugh-कर्टिस सिंड्रोम की एडिशंस नजर आएंगी, और इसको अगर आप कट करें लेप्रोस्कोपिकली तो पेशेंट को इस पेन का बेनिफिट हो सकता है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिकली ड्यू टू क्लेमिडिया। अब ये है आपकी स्लाइड जिसमें आप ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई देख रहे हैं, ये एरो आपको बता रही है, और ये है गोनोरिया की स्लाइड। अल्ट्रासाउंड इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू, एमआरआई इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू। आप देखें थोड़ी सी आपको ट्यूब्स की वास्कुलैरिटी नजर आ रही है, आपको फ्लूइड नजर आ रहा है पाउच ऑफ डगलस में। इसके अलावा अगर एब्सेस हो तो एब्सेस आपको नजर आएगा, और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको अल्ट्रासाउंड या एमआरआई से नहीं मिल सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको डिफरेंशियली कैसे डायग्नोज करेंगे। अब पेशेंट बहुत कॉमन हमारे पास पेशेंट्स आती हैं 3 सिम्टम्स के साथ। डॉक्टर साहब जख्म है, रसोली है और पानी है, डिस्चार्ज है। तो ये पेशेंट जो लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आती हैं और ये कहती हैं जख्म है, इनको क्या कुछ हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कोई भी पेशेंट पीआईडी के साथ आए, आप जरूर एक्सक्लूड करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड और बीटा HCG जरूर करें, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी और जो पीआईडी है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। दूसरा है एक्यूट एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस का पेन यूजुअली राइट साइड को होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है, और पेशेंट को सर्वाइकल मूवमेंट के साथ पेन हो सकता है, लेकिन आप इसमें WBC काउंट ज्यादा होगा, टेम्परेचर होगा। तो जो एक्यूट एपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स होंगे उनको टेम्परेचर ज्यादा होगा। यू हैव टू एक्सक्लूड बाय क्लिनिकल मेथड्स। एंडोमेट्रियोसिस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो या मेंसेस के दौरान पेन होता है या उनको डिस्पेरिनिया होता है, तो दैट कैन आल्सो बी एक्सक्लूडेड। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओवेरियन सिस्ट, एक पेशेंट आएगी आपको कहेगी आपको सडन एब्डोमिनल पेन हुआ, तो ओवेरियन सिस्ट की जो पेशेंट है उनको अक्सर
ओवेरियन सिस्ट अल्ट्रासाउंड पे उनको पता होता है कि है, या उनको नहीं भी पता हो तो अल्ट्रासाउंड पे पता चल सकता है कि ये सिस्ट है, या उसकी टॉर्शन हुई है, या उसका रप्चर हुआ है, तो उसमें आपको फ्लूइड नजर आएगा अल्ट्रासाउंड पे। तो कॉम्प्लिकेशंस जो ओवेरियन सिस्ट की होती है उसका सडन ऑनसेट होता है। इनमें पेशेंट्स को टेम्परेचर नहीं होता, इनको पेन जरूर होगा, सर्विक्स के टच करेंगे तो भी पेन होगा, लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स से आप इसको एक्सक्लूड करेंगे, और पीआईडी से इसके सिम्टम्स डिफरेंट है। देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर है, पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लैडर एरिया में पेन होता है, लेकिन आप इसको एक्सक्लूड करेंगे विद सिम्टम्स, उनको डिस्यूरिया होगा और फ्रीक्वेंसी होगी, और इनका यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें पस सेल्स आएंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बहुत पेशेंट्स आती हैं हमारे पास, उनके पास उनके सिम्टम्स जो होते हैं, उनके बाउल हैबिट्स के भी सिम्टम्स होते हैं, और उनका जो है लॉन्ग हिस्ट्री होती है, और एक्यूट बाउल इन्फेक्शन भी उनको हो सकता है, लेकिन यू हैव टू एक्सक्लूड इट। उनको सर्वाइकल पेन, यूट्राइन पेन नहीं होगा, विजाइनल एग्जामिनेशन पे डिस्चार्ज नहीं होगा। बहुत पेशेंट्स हमें आती हैं जो फंक्शनल होती हैं, अननोन इटियोलॉजी, उनको कुछ नहीं होता लेकिन उनको पेन होता है। ऐसी पेशेंट्स को मल्टी सिम्टोमेटिक होती हैं, और भी इनको डिफरेंट जगह पे एक सेम पेन्स होते हैं, और इनकी जो है ये लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री होती है, कोई अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल कॉज होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पेशेंट्स को डिफरेंशियली डायग्नोज करें कि कौन सी पेशेंट को पीआईडी है और कौन सी को नहीं है। अब पीआईडी के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। अर्ली इन्फेक्शन में कोई पेशेंट को कुछ भी नहीं होता, मॉडरेट टू सीवियर प्रॉब्लम्स में उसको आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। और क्राइटेरिया क्या है हॉस्पिटल के एडमिशन के? शी प्रेजेंट यू एज अ सर्जिकल इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब है उसको सीवियर पेन है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, राइट हाइपोगैस्ट्रियम में, और उसको अपेंडिक्स हो सकता है या कोई ओवेरियन सिस्ट की कॉम्प्लिकेशन। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में यूजुअली पीआईडी होता नहीं है, अपर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए कि उनका सर्वाइकल म्यूकस प्लग होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में उस वक्त हो सकता है जब उनका आपने डीएनसी और एबॉर्शन हुआ हो। उस सूरत में बहुत सी पेशेंट्स आते हैं जो कि पेरिटोनाइटिस के साथ भी आ सकते हैं, दे हैव टू बी एडमिटेड। अगर आपने पेशेंट को प्रॉब्लम्स हैं और ओरल थेरेपी दी है और वो ठीक नहीं हुई, आपको उनको एडमिट करना है, या उनको सीवियर इलनेस है, फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग, हाई फीवर, या उनको एब्सेस है, या उनको एचआईवी इंफेक्शन है, these patients have to be admitted. Now, treatment guidelines. Treatment is very important, even though the patient may not having symptoms, लेकिन अगर पेशेंट आई है आपके साथ और उसको आपने विजाइनल एग्जामिनेशन किया है और उसको लोअर एब्डोमिनल पेन है, आपने उसकी पीवी की है, आपने देखा है कि सर्विक्स को थोड़ा सा टच किया उसको पेन हुआ, या आपने बाय मैनुअल एग्जामिनेशन किया उसको पेन हुआ, या एडनेक्सल टेंडरनेस हुई, आप उस पेशेंट को बेधड़क आप उसको ट्रीट कीजिए ताकि उसको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ना हो। क्योंकि अगर आपने उसको टाइम पे ट्रीट ना किया तो लेटर ऑन उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, उसको पीआईडी हो सकती है, क्रॉनिक पेल्विक पेन्स वगैरह हो सकते हैं। तो सबको बचाने के लिए अगर आप इन पेशेंट्स को ट्रीट करें प्रॉपर एंटीबायोटिक से जो कि क्लेमिडिया और गोनोरिया को भी कवर करें, तो ये प्रॉब्लम्स लेटर ऑन नहीं होंगे। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पीआईडी के साथ? ठीक है, लोअर एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस वगैरह, लेकिन अगर और भी इसके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकोप्यूरिन डिस्चार्ज जो कि मैंने आपको दिखाया है गोनोरिया और क्लेमिडिया का, और सर्वाइकल फ्राइबिलिटी, आपको आप जब स्पेकुलम करेंगे तो आपको सर्विक्स ऐसे फ्राइबल लगेगा, रेड लगेगा। Presence of abundant numbers of WBC on saline
microscopy of vaginal fluids. WBCs, elucidative protein, and laboratory documentation of cervical infection with gonorrhea or chlamydia trachomatis. Now, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, इसकी आरसीजी की गाइडलाइंस हैं, यूनिवर्सल गाइडलाइंस हैं कि आपने इन पेशेंट्स को क्या देना है, किस वक्त देना है, इंट्रावेनस देना है, मस्कुलर देना है. So most women with PID have either mucopurulent cervical discharge or evidence on a microscopic evaluation of a saline preparation of vaginal fluid. Now, अगर cervix normal है और आपने वो fluid लिया और उसमें कोई WCs नहीं है, तो it's unlikely that the patient has got PID. अब अगर आपने wet preparation ली है, माइक्रोस्कोप में देखा है, क्योंकि क्लिनिक में हम लोग इतने बिजी क्लिनिक में नहीं देखते, स्वाब्स ही ले लेते हैं, लेकिन उस वेट फिल्म में आपको क्लू सेल्स भी नजर आ सकते हैं, ट्राइकोमोनास भी आपको नजर आ सकते हैं. तो और क्या सपोर्टिंग फीचर्स हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, नॉट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस के लिए? बायोप्सी में आपको एंडोमेट्राइटिस आएगा, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें आपको फ्री फ्लूइड आएगा, ट्यूबोवेरियन कॉम्प्लेक्स मासेस आएंगे, डॉपलर स्टडीज में आपको पेल्विक इन्फेक्शन पता चलेगा. क्या होगा उसमें? इंक्रीज वास्कुलैरिटी या ट्यूबल हाइपरिया होगा. एंड लेप्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट विद पीआईडी. कभी कभी हम लेप्रोस्कोप करते हैं तो उसमें हमें पीआईडी का एक्यूट या क्रॉनिक पीआईडी का पेशेंट डायग्नोज हो जाता है. एक्यूट में ट्यूब्स हाइपरीमिक होती हैं और ओवरीज और जो यूट्रस है वो हाइपरीमिक होता है, और ओवरीज और ये एडिशंस होती हैं, ट्यूबोवेरियन मासेस हो सकते हैं, पास हो सकती है, और क्रॉनिक पीआईडी में फुलनेस हो सकता है, थिक एडिशंस. Now, PID treatment regimens must provide empiric, broad-spectrum coverage of likely pathogens. All regimens to treat PID should be effective against Neisseria and Trachomatis. अब ये बहुत important बात है. Chlamydia is notorious for causing infertility, and chlamydia is notorious for causing adhesions, and it is very difficult to find out on the vaginal swabs. So one should always do a test and exclude this. Treatment should be initiated as soon as the presumptive diagnosis has been made, because prevention of long-term sequelae is dependent on early administration of appropriate antibiotics. Now, the decision of whether hospitalization is necessary should be based on the judgment. Surgical emergencies, tubovarian abscesses, pregnancies, severe illness, nausea and vomiting, or high fever, unable to follow or tolerate an outpatient oral regimen, or no clinical response to oral microbial therapy, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. तो जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट यानी कि आपको थोड़ा भी शक हो तो आप पेशेंट को जरूर ट्रीट करें, और ऐसे ड्रग्स के साथ ट्रीट करें जो कि क्लेमिडिया और ट्राइकोमोनास, नॉट ट्राइकोमोनास, गोनोरिया को कवर कर सके. अब पेरेंटल ट्रीटमेंट आप ऐसी पेशेंट को देंगे जो मैंने आपको बताया है, जो कि बहुत सिक हो, और जिसको एब्सेसेस हो, जिसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, जो इन पेशेंट उसमें. अच्छा, रूल ये है कि आप अगर पेशेंट ओरल नहीं ले सकती उसको पेरेंटल दें, या बहुत सिक है तो उसको पेरेंटल दें. आप उसको 24 to 48 आवर्स जब वो इम्प्रूव कर जाए उसको आप ओरल पे स्विच करें. तो रिकमेंडेड जो रेजिमेंट्स हैं
उसमें सीफोचिटेन या डॉक्सीसाइक्लिन आप इंट्रावीनस दे रहे हैं। ये सीफोचिटेन और सीफॉक्सिटिन जो हैं ये सेकेंड जनरेशन केफेलोस्पोरिन्स हैं। तो एक आप सीफोचिटेन आपने 2 ग्राम एवरी 12 आवर्स देनी है, डॉक्सीसाइक्लिन भी आपने एवरी 12 आवर्स देनी है। जब पेशेंट ठीक हुई आपने ओरल पे आप उसको 14 दिन तक आप उसको ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। तो ये इसमें सेकेंड जनरेशन केफेलोस्पोरिन्स और ये डॉक्सीसाइक्लिन इंट्रावीनस या फिर क्लिंडामाइसिन जेंटामाइसिन। तो जो थेरेपी ये 3 थेरेपी है आपने ये डॉक्सीसाइक्लिन क्लेमिडिया के लिए जरूर देनी है, और जब पेशेंट बेटर हो जाए, उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाए, तो उसके बाद आप 24 to 40 आवर्स तक और फिर ओरल पे शुरू कर दें। अब दूसरे रेजीम इंट्रामस्कुलर ओरल में, इंट्रामस्कुलर में 1 शॉट देंगे और साथ में आप डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनाइडोजोल। मैं प्रेफर करती हूँ कि मेट्रोनाइडोजोल भी जरूर दी जाए, क्योंकि जहाँ इन्फेक्शन होता है वहाँ ग्राम ये बैक्टीरियोइड्स भी होते हैं। तो सेफ्ट्राइक्सिन 250 milligram in a single dose, doxycycline with or without metronidazole, और सिफॉक्सिटिन 2 ग्राम इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज, यानी 1 डोज आपने इंट्रामस्कुलर दे दी और दूसरी जो है डॉक्सीसाइक्लिन आपने ओरली दी। सो दिस इज या आप 3rd जनरेशन की 1 डोज दे दें। तो यूजुअली 1 शॉट ऑफ second or 3rd generation cephalosporins with 14 days of the same doxycycline with or without metronidazole. So, अच्छा, अब जो ओरल ट्रीटमेंट है, ओरल ट्रीटमेंट जिसमें आप इंजेक्शन नहीं देते, दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन एंड मेट्रोनाइडाजोल, यू हैव टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट फॉर अबाउट 14 days. यहाँ एक बहुत जरूरी बात है कि जहां आपने वाइफ को ट्रीटमेंट दी, वी डील विद वुमेन, वी डोंट डील विद मेन। आप उनको जरूर एक नुस्खा हस्बैंड के लिए दें और उनको ये बताएं कि इस वक्त उन्होंने तकरीबन 14 दिन तक, जब तक उनके सिम्टम्स ठीक हुए, सेक्सुअल इंटरकोर्स से एब्सटेन करना है, ताकि एक दूसरे से बीमारी लगे ना और दोनों ठीक हो। Now, how can it be prevented? As you know, prevention is better than cure. तो सबसे पहले क्या है? सेफ सेक्स, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, 1 पार्टनर, दैट्स ऑल, जिसे हमें मजहब बताता है। लेकिन आप देखें हमारी सोसाइटी में भी बहुत सी इस तरह की बातें हैं जिसको आपने लोगों को अवेयर करना है। आप देखें HIV हमारी सोसाइटी में कैसे फैल रहा है, इसी तरह STIs भी फैल रही हैं, और ये वक्त है कि हम इसके बारे में बात करें। और जैसे बाहर के मुल्कों में गम क्लिनिक्स होते हैं, हम भी गम क्लिनिक्स बनाएं ताकि लोगों की अवेयरनेस हो। सो अब प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? आप इनको इनकरेज करें कॉन्डम यूज करने की, और आप इनको इनकरेज करें कि थोड़ा सा अब रूटीन स्क्रीनिंग तो उनकी होनी चाहिए जो कि हाई रिस्क केसेस हैं, लेकिन जो हाई रिस्क नहीं है, उनको जरा भी प्रॉब्लम है, दे शुड गो फॉर स्क्रीनिंग। Then women should be counseled on the signs and symptoms of both STDs and PID, educated about avoidance of high-risk behavior, and advised of the benefits of consistent condom use. So condom use करना है, सेफ सेक्स करना है, जरा सा भी शक है आपने डॉक्टर के पास जाना है। और जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको क्लेमिडिया के लिए आप स्क्रीन करें, तो इससे तकरीबन 30 to 50% क्लेमिडिया का चांस कम होता है। नाउ अगेन, जब PID हुआ तो आपने कपल को ये कहना है, उसके पार्टनर को ये कहना है कि he should also take medicine and abstain
until the symptoms subside and until they are having the medications. Now, recommendations for individuals to prevent STD and PID. हम एक कम्युनिटी को कैसे बताएंगे कि ये जो PID है, देखिए एक STI है, STI जो लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, एंड यू नो इससे सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इससे बचना है। तो ये दिस कैन लीड टू PID, तो ये क्या मेजर्स लेने चाहिए और लोगों को कैसे बताना चाहिए? तो एक है जनरल प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स और उनकी रिकमेंडेशंस। मेंटेन हेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर एंड यूज बैरियर मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। सो इसका मतलब ये हुआ कि एज ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स शुड बी about 2 to 3 years after PNR. Limited number of sex partners and avoid casual sex with high-risk partners. अगर आपका पार्टनर हाई रिस्क है तो आपने सेक्स अवॉइड करना है या उनसे क्वेश्चन करें कि अब आपका कोई STD है या इन द पास्ट था या कोई लेशन था, एंड देन यू हैव टू एब्सटेन। बैरियर मेथड्स यूज करना है, यूज जो है वो बैरियर मेथड्स क्या है, इवन दो इफ यू आर नॉट doing contraception, you're not using it for contraception, you use condoms, diaphragms or vaginal spermicides consistently and correctly, तो इससे बहुत प्रोटेक्शन हो जाती है। आप देखें जो HIV में भी इसके बारे में, हम HIV के बारे में बहुत बोलते हैं, टीवी में इसके बारे में बहुत प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये STI और PID के बारे में कोई हमारे मुआशरे में अवेयरनेस नहीं है और लोगों को ये नहीं पता, स्पेशली मर्दों को, कि भाई ये जो सेक्सुअल बिहेवियर है इट कॉजेज इनफर्टिलिटी, so this has to be told to the community. फिर आप कैसे सीख करेंगी हेल्दी मेडिकल केयर? जैसे आपको शक हुआ कि आप मैरिटल या रिलेशनशिप ऐसे इंसान से है जिसको कोई लेजन है या जो कि सस्पेक्टेड है, जिसको हो सकता है STI या कोई लेजन है या मोनोगैमस रिलेशनशिप है, फौरन आपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर डॉक्टर जो मेडिसिन देंगी आपने जरूर लेनी है और आपने फॉलो अप भी करवाना है, एंड यू हैव टू एब्सटेन until the treatment is completed and until you have treated the partner. Then another important thing, अब ये linkages भी होते हैं कि हमारे बास पेशेंट्स जो हैं इनके different sex partners होते हैं, and you have to make sure about their sex partners, उनको trace करना है, उनके sex partners को काउंसिल करना है और उनको ट्रीट करना है। पर यही कुछ हो रहा है इसमें, HIV के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यही कुछ हो रहा है, यही कुछ STI और PID में भी करना चाहिए। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का क्या फर्ज है? उनका ये फर्ज है, हम लोगों का ये फर्ज है कि हम एजुकेटेड हो इस प्रॉब्लम के बारे में, हमें नॉलेज हो कि ये डिजीज क्यों होती है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसकी मेडिकेशन क्या है, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इसका फॉलोअप क्या है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हम इस पे, जैसे ये वेबिनार हो रहा है, इस तरह के वेबिनार्स करें, कंटिन्यूड एजुकेशन करें, टीवी पे, अखबारों में इसके प्रोग्राम्स दें कि थोड़ा सा आपके एब्डोमिनल पेन है, थोड़ा सा डिस्चार्ज है, it can lead to ectopic pregnancy, you may die of ectopic pregnancy, it can lead to infertility, और आपको पता है infertility में जब ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं कोई उसका इलाज नहीं है सिवाय IVF के, which costs about 5 to 6 lakhs, and these poor patients cannot go and have this treatment. आपने पेशेंट को डिफरेंट तरीके से आपने उनको बताना है, उनको इनकरेज करना है कि ये हेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर क्या होता है और वो
बैरियर मेथड्स यूज करें, और जब कोई प्रॉब्लम हो वो डॉक्टर के पास जाएं। और इनको हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ये भी पता होना चाहिए कि प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन में all the high risk patients must be screened for chlamydia and gonococcus. So in our community, in our country, it's difficult, and they should treat STI जहाँ शक हो उधर treat करें। अगर किसी को डिजीज है तो diagnose STDs promptly, treat STDs promptly, and encourage patients to comply with the treatment instructions. जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्स पार्टनर्स का पहले मालूम करना कि कौन है, उसको ट्रीट करना और उसका फॉलो अप करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए गम क्लिनिक्स होते हैं जिसमें इस तरह के, हमारी कंट्री में तो ये जो स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट मेल्स या फीमेल्स को ट्रीट करते हैं because they have got, maybe because of the lesions or what, but STI patients mostly go to dermatologists. इसके अलावा जो pelvic inflammatory disease है, इसमें क्या क्या हो सकता है? chronic pelvic infection हो सकती है। वो कैसे होती है? ये जो ट्यूब्स हैं जिसके अंदर एंडोसल्फिंग्स या हाइड्रोसल्फिंग्स हुई है, जहाँ एडिशंस हैं, जहाँ ट्यूब्स हिल भी नहीं सकती, उसमें कोई नाइडस हो जो कि बार बार इन्फेक्शन करे तो उससे क्रोनिक PID बन जाता है। इस पेशेंट को हमेशा पेल्विक पेन होता है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अगर आप इसको लेप्रोस्कोपी करें, देखें कि क्या मसला है, उसको क्यों पेन हो रहा है, एंड देन यू हैव टू, अगर ट्यूबो ओवेरियन एक्सेस है तो उसको आप ट्रीट करके निकालें। और अगर फैमिली कंप्लीट है, शी मे इवन नीड a total abdominal hysterectomy. फिर IUCD के साथ कभी कभी ये PID की एसोसिएशन है। अगर आपने सही तरीके से नहीं रखी तो पेशेंट कैन हैव pelvic inflammatory disease। उसमें आपने पहले ट्रीटमेंट देनी है पेशेंट को। अगर उसका पेन और उसका डिस्चार्ज ठीक ना हुआ तो यू मे हैव टू टेक अवे द IUCD, and then Mirena is said to be a better one because there is less incidence of associated with pelvic inflammatory disease. PID में एक और है टीनोमाइकोसिस is associated with IUCD, उसका भी ट्रीटमेंट है, पेनिसिलिन से उसको ट्रीट करते हैं। जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, that is usually blood borne। तो ये सब है, but usually जो है 80% of patients जो हैं, they are due to the microorganisms, chlamydia and gonorrhea, so you have to diagnose and treat them. So अब prevention कैसे करना है? Prevention में आपने educate the patient to avoid pre-infection and potential hazards of it. The patient should be warned against multiple sexual partners, use of condom, and sexual partners, male को कभी-कभी non-gonococcal urethritis होता है, तो उनको tetracycline या doxycycline से देना चाहिए। अब ये जो है माइकोप्लाज्मा और क्लेमिडिया मेल इनफर्टिलिटी की भी एसोसिएशन है, तो the males should also be given either tetracycline or doxycycline. So here I finish my lecture. Well, you can ask questions. I didn't discuss about surgeries, but acute PID में कभी-कभी surgeries की भी जरूरत पड़ती है, और surgery में especially surgery उन patients में होती है जो कि आपने वो किया, for example क्यूरेटाज किया और उसमें जो पेशेंट है पेरिटोनाइटिस उसको हो गया, तो देन यू हैव टू ट्रीट देम। अगर उस पेशेंट के एब्डोमेन में पस है, एक्सट्रीम केसेस में या उसको ट्यूबोवेरियन एक्सेस है, यू हैव टू डू सर्जरी। सो समरी ये है कि PID बहुत कॉमन है,
हम इसको हम सीरियस हमें लेना चाहिए। और अगर पेशेंट आपके पास एब्डोमिनल पेन और डिस्चार्ज और सर्वाइकल मूवमेंट के साथ पेन, इस तरह के मामूली सिम्टम्स के साथ भी आए, उसको डिस्चार्ज हो या ना हो, मस्ट ट्रीट PID, बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है लेटर ऑन ट्यूबल एडहेजन क्रॉस करता है, ट्यूबल की सीलिया क्रॉस करता है। लेप्रोस्कोपी में हम देखते हैं कि इस तरह की जो क्रॉनिक PID या अक्यूट PID जिसकी ट्यूब्स इफेक्टिव हुई होती हैं, ट्यूब्स पेटेंट भी हों तो वो रिजिड होती हैं, वो फाइब्रोज्ड होती हैं, तो उन पेशेंट्स के बच्चे नहीं हो सकते। So I hope this was informative for you. Thank you very much, and thanks once again to the Pfizer company. Madam, thank you very much. Thanks a lot. We have really enjoyed a lot your presentation.